Okay, so let everyone join, then we'll start. Hello. Okay, let everyone join. I think there are some more people to join, so we'll start just in few minutes. हाँ 2-3 मिनट देख लो एंड देन स्टार्ट ओके. हेलो एवरीवन. जब तक सब लोग आते हैं ऐसा करो, एक एक करके इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट कर दो. ठीक है. एंड देन व्हेन एवरीवन जॉइन आई विल बी गिविंग माय इंट्रोडक्शन. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम. ओके, सो जस्ट नेम बोलता जाऊंगा जो जो मेरी स्क्रीन पर आ रहे हैं. बाकी जो बचे वो स्टार्ट कर देना. रूपाली, फर्स्ट ऑफ ऑल. Okay, first tell me, like, am I audible to everyone? Yes, sir. Cheek. Nitin, start. Means just a short intro. My name is Nitin Mittal. I am from Bulandshahr, Uttar Pradesh, and currently I am pursuing my bachelor's degree from NIT. And currently also I am intern at Nolda Softwares. So, okay, from which NIT? NIET, Achha, Noida NIT. Institute of Engineering and Technology. Okay, okay, okay. Which year? I am in final year. Okay, Nitin. Next, anyone? Good evening, sir. Good My name evening. is Rupali Kushwaha. Uh, Hello. I'm hello, I'm audible, sir. You're audible. My name is Rupali Kushwaha. I am from Gorakhpur, but currently I am studying in Jabalpur. College name Gyan Ganga College of Technology. Sure. Okay, next. I am second year student for Okay. CS. Okay, now next one. Anyone who want to give introduction?
Good evening, sir. My name is Samriddhi Thakur and I am from Himachal. But currently, I am pursuing my BTech Civil Engineering from Graphic Era Hill University, Dehradun, and I am student of second year. Okay. Anyone next? है कोई इंटरेस्टेड बताने में? मीन्स बता दो यार, क्या ही जा रहा है. यू कैन टेल इफ यू वांट. You can start, Mayank. You can start. Okay. So, hello everyone. My name is Mayank. I am from NIT Durgapur. So, I'll be taking your 12th session of Core Java. So, okay. So, can you tell me that everyone, how much you are familiar with Java? किसी को कितना आता है, कोई भी आइडिया हो, या what is Java and anything all? कोई भी, ताकि जस्ट मुझे एक आइडिया लग जाए. No, sir, I have no knowledge of Java. Means you all are beginner. Should I Yes, assume sir. that? Means Yes, sir. and like knowledge of any other language, if any one of you has. Yes, sir, I know. Okay. Anyone else want to tell? No one? Okay. Means okay. So let's start. Let me present my screen. Wait a minute. So is it visible? Yes, Just sir. give me a thumbs up. Okay. So let's start. Okay. So first of all, we'll focus ki what is Java and why Java is important. Like we are focusing on Java. So Java mein, okay, are you comfortable with both the language or Hindi, English, means any specific? Okay, so I'll continue in both. If किसी को भी प्रॉब्लम हो देन बीच में रोक देना या जस्ट एक मैसेज कर देना. Yes, sir. Okay. So what is Java? सब कहते हैं कि जावा यूज करो, जावा बहुत अच्छा है. काफ़ी सारे इंटरव्यूज में whenever you will give interviews or anything you'll always look कि yes they are asking Java. So first of all the most important thing कि why it is very important, you know, like for example suppose I am typing a source code for my Java. ओके, एवरीवन नोज आई थिंक सोर्स कोड. मैं सोर्स कोड लिखता हूँ, देन मैं उसको कंपाइल करा एंड देन मैंने उसको एग्जीक्यूट करा. तो ये तो मैं सारी लैंग्वेज में ही कर सकता हूँ, चाहे C++ हो चाहे पाइथन हो. जावा में ऐसा स्पेशल क्या है? जावा में ऐसा स्पेशल ये है कि जो मेरा वो सोर्स कोड होगा ना, मैं उसको भले ही एक विंडोज़ या मैक में बैठ के टाइप कर रहा हूँ, लेकिन जो कोई मेरा फ्रेंड होगा या मेरा कोई कंपनी का कलीग होगा, वो उस कोड को अपने दूसरे सिस्टम में यूज़ करना चाहता है तो उसको ईजीली यूज़ कर लेगा. दैट इज़ द की कंसेप्ट. इसको कहते हैं अपन कि जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अनलाइक अदर लैंग्वेज. सपोज आई एम टाइपिंग अ सोर्स कोड, मेरे पास विंडोज़ है, मैं विंडोज़ में एक सोर्स कोड लिख रहा हूँ. अब मैं अपने किसी कलीग को एक सोर्स कोड भेजता हूँ जावा सी फाइल बना के, तो वो होगा क्या, वो उसी जावा सी फाइल को उसके लिनक्स या मैक कहीं भी यूज़ कर लेगा एंड उसको उस जावा सी फाइल से आउटपुट मिल जाएगा. सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ जावा. And let us focus on some other key points about Java. Okay, so these are very important key points. Whenever you will give any interview या कुछ भी हो, तुमसे ये तो पूछेगा ही पूछेगा. So let's focus on first of all object oriented programming. Java, everyone says कि यार Java object oriented है,
यार जावा बहुत अच्छे से जावा में क्लासेस लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है मैं एक बेसिक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा, एंड देन जस्ट इसको एज ए इंट्रोडक्शन ही लेना, स्लोली वी लर्न इन द अपकमिंग सेशंस। ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड, इसका मतलब क्या होगा, सपोज जैसे अज्यूम कि मार्केट में एक फ़ोन आया रेडमी, ठीक है, रेडमी का, एंड देन नेक्स्ट क्या हुआ, रेडमी ने अपडेट्स डाले, रेडमी 1, रेडमी 2, रेडमी 5, रेडमी 10। अब उन सब में अपन को पता है कि थिंग्स विल बी कॉमन, कैमरा तो होगा ही होगा, सब में माइक्रोफोन होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा, कंपनी वाले यही करते हैं, सबने देखा है, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। तो एक्चुअली दिस इज व्हाट जावा प्रोवाइड्स अस। अब उन्होंने क्या करा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करके एक क्लास लिखी, ओके, एंड देन at each and time when they launch new model, so they don't overwrite the code again and again, they just use the same code जो उन्होंने क्लास लिखी, they just use that class and with some changes and they launch into the market। तो इससे क्या हुआ, अपना कोड का बार बार लिखने से बच गए एंड बहुत इजीली स्ट्रक्चर्ड हो गया कि वी नो दैट रेडमी 5 में ये था, रेडमी 6 में वी विल गिव दैट। सो दैट इज व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड। This is why Java is very important, and again I told you, platform independent. Unlike other language, Java is platform independent. मैं यहाँ बैठ के कोड कर रहा हूँ, मेरे दोस्त को भी मुझे कोड भेजना है, वो लिनक्स यूज़ कर रहा है, मैं डायरेक्ट यहाँ से सेंड करूँगा जावा सी फाइल बना के, देन वो उसी कोड को लिनक्स में एग्जीक्यूट कर लेगा, नो प्रॉब्लम। जबकि अदर लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। एंड देन सिक्योरिटी, जावा काफ़ी सिक्योर है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। किसी को भी दिक्कत हो तो बीच में रोक देना या मैसेज कर देना, आई लुक एट दैट। एंड नाउ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बाइट कोड। आई थिंक समवन वांट टू एंट्री। ओके, नाउ अनदर की फीचर इज बाइट कोड। तो बाइट कोड एक्चुअली होता क्या है, चलो देख, एक चीज़ सोचना, जैसे मेरा जावा है, तुमने किसी भी लैंग्वेज पे काम करा होगा, अपन कोई भी लैंग्वेज पे कुछ भी सोर्स कोड लिखते हैं, देन वी नीड टू कंपाइल एंड देन वी सी आर एग्जीक्यूशन आउटपुट। जावा क्या करता है, जैसे मैंने किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करा, तो कंपाइल करने के बाद जावा कन्वर्ट्स इट इनटू बाइट कोड, विच इज की कंसेप्ट। जावा उसको क्या करेगा, बाइट कोड में बना लेगा, एंड दैट बाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड इनटू एन मशीन नोन एज, उस मशीन के बारे में आगे पढ़ेंगे, बस ध्यान रखना। जावा क्या करता है, उस बाइट कोड को मशीन में एग्जीक्यूट करता है, एंड वो मशीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म, मीन्स वो मशीन इंडिपेंडेंट है प्लेटफॉर्म के, तभी मेरी जावा इंडिपेंडेंट है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के। दैट इज व्हाट बाइट कोड। एंड फिर अनदर कंसेप्ट कम्स इज मल्टी थ्रेडिंग एंड डायनेमिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा इंटरव्यू भी हुआ था, उसमें मेरे से मल्टी थ्रेडिंग पूछा था। सो इसको अपन 7th या 8th लेक्चर में पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ेंगे। जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सपोज अपन सब लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे या फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, तो आजकल आप लोगों ने देखा है देयर आर ऑप्शंस ऑफ मल्टी टैब्स। ओके, मीन्स if like at one instant I am playing games and another instant I can use WhatsApp, means एक साथ दो तीन तीन काम हो रहे हैं, that is what multi-threading। So in Java एक साथ we can execute multiple codes and multiple processes होती है, that is what multi-threading is। Okay, am I clear? समझ में आ रहा है ना सबको? Yes sir। कोई भी दिक्कत हो बीच में रोक लेना, पिंग कर लेना। देखो, आई वॉन्ट दिस टू बी इंटरेक्टिव, यू ऑल आर ऑल्सो गिविंग योर टाइम, तो तुम भी चाहते होगे कुछ सीखें, तो कीप इट इंटरेक्टिव। अच्छा आएगा, मजा आएगा, सब कुछ करेंगे अच्छे से, कुछ नहीं छोड़ेंगे, पूरा जावा अच्छे से करके ही जाएंगे जब सेशन खत्म होगा। ओके, एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो, मैं डायनेमिक मेमोरी, चलो इंटरप्रेटेड देख लेते हैं पहले। इंटरप्रेटेड एक्चुअली होता क्या है, जैसे तुम्हारा पाइथन है, पाइथन एक्चुअली क्या होता है, कंपाइल नहीं होता। व्हेनेवर यू आर राइटिंग, वो पता है किसी को, कोई बताना चाहे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सर लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होता है, मतलब हाँ बिल्कुल, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। जैसे पाइथन क्या होती है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है।
इन द एंड एक साथ कंपाइल नहीं होती, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। लेकिन जो अपनी जावा है ना, उसका बहुत अच्छा फीचर है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट भी होती है प्लस कंपाइल भी होती है। दैट इज व्हाट इंटरप्रिटेशन। एंड लाइक एक और कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके भी काफी क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में, डायनामिक। डायनामिक इज बेसिकली एक बहुत ही अच्छा मेमोरी बचाने का तरीका। एक चीज सुनना ढंग से, सपोज कि मुझे कोई प्रोग्राम लिखना है, अब प्रोग्राम लिख रहे हैं तो मेमोरी तो यूज होगी ही ना, ये तो सब जानते हैं। सपोज मुझे ये पता है कि मेरा वो प्रोग्राम है कि वो 10-12 हज़ार बाइट से ज़्यादा नहीं खाएगा। अज्यूम करना दैट प्रोग्राम वोंट टेक मेमोरी मच देन 10 और 12,000 बाइट्स, वी नो दैट। वन पॉसिबल केस इज व्हाट, वी कैन अलोकेट अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी 10 to 12,000 टू दैट प्रोग्राम। क्लियर है थिंग्स? मतलब 10-12 हज़ार मेमोरी अपन उस प्रोग्राम के लिए अलोकेट कर दें। एंड सपोज मैंने कर भी दी, ठीक है यार, मैंने कहा आई नो दैट इट विल टेक 10 to 12,000 बाइट्स, सो आई एम जस्ट अलोकेटिंग 10 to 12,000 बाइट्स। बट वॉट इफ मेरा प्रोग्राम 4,000 बाइट्स में ही कंप्लीट हो गया, मेरा बचा हुआ मेमोरी इज वेस्ट, इज ऑफ नो यूज टू मी। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes. What does Java provide? It provides dynamic memory allocation. So what will happen whenever I am writing program, if it takes 1,000 bytes, then Java will allocate only 1,000 bytes. Now slowly as I am writing more code, as memory allocate और ज़्यादा होता जाता है, तो Java क्या करेगा, slowly memory बढ़ाता जाएगा और allocate देता जाएगा। जैसे 4,000 बाइट है तो Java 4,000 बाइट ही देगा, 3,000 बाइट है Java 3,000 बाइट ही देगा, 3,000 से ज़्यादा है तो Java slowly allocate करता जाएगा जैसे जैसे मैं कोड लिखता जाऊंगा। पहले से नहीं देता ज्यादा? नहीं, पहले से भी ज़्यादा देता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना, समझो कि मैं कोई भी प्रोग्राम लिख रहा हूँ एंड मैंने पहले से ज़्यादा मेमोरी दे दी, एंड हुआ क्या कि उस प्रोग्राम ने उतनी मेमोरी नहीं ली, तो मेमोरी तो मेरी वेस्ट हो गई ना। यस सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अपन लोग, अभी तुम आगे जाके देखोगे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सब होते हैं, सब मेमोरी बचाना ही चाहते हैं। मीन्स मेमोरी, एवरीवन वांट्स कि मेमोरी कम से कम यूज हो एंड आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो। दैट्स व्हाई। आई होप यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर। एंड नाउ लेट्स मूव टू JVM। याद है मैंने बाइट कोड में मशीन की बात करी थी यहाँ पे, मैंने बोला था कोई मशीन होती है, हाँ, तो वो मशीन होती है JVM, नोन एज जावा वर्चुअल मशीन। ये वही मशीन होती है जो मेरे बाइट कोड को एग्जीक्यूट करती है। एंड दिस मशीन इज इंडिपेंडेंट, चाहे विंडोज हो, चाहे लिनक्स का कोई वेरिएंट हो, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये JVM इंडिपेंडेंट है और मेरे बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर लेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब now let me explain you more like how Java work, then I'll tell you about Java runtime environment क्या है and Java development kit क्या है। ठीक, so okay, how Java work, जैसे मैंने बताया एक source code होगा, I'll write that source code, then I'll compile it, so it will be compiled and it will be compiled into a byte code। Getting my point? Source code, then to byte code, and then JVM will execute that byte code। Okay, जैसे एग्जाम्पल देखना, मेरा सोर्स कोड होगा, जावा कंपाइलर ने कंपाइल करा, कंपाइल टू बाइट कोड, एंड देन मेरा जावा वर्चुअल मशीन ने इसको पूरा कंपाइल करा, byte code verifier, then JIT compiler which is present inside Java virtual machine, and then code compile होके मुझे output मिला। I think I am clear। कोई डाउट हो तो रोक लेना बीच में। Okay, now look at JRE, the Java runtime environment and Java development kit। Okay, so what is JRE? एक्चुअली JRE क्या करता है? JRE इज जावा रन टाइम एनवायरमेंट। एंड व्हाट इज जावा रन टाइम एनवायरमेंट? जावा रन टाइम एनवायरमेंट मुझे प्रोवाइड करता है एक तो जावा की वर्चुअल मशीन प्लस अदर लाइब्रेरीज एंड अदर कंपोनेंट्स which are written in Java only। Means actually
JRE is JVM plus other important libraries which are necessary for Java programming language. Okay. And फिर आता है Java development kit which is nothing else than Java runtime environment. Means मेरा उसमें Java की वर्चुअल मशीन आ गई, सारी लाइब्रेरीज आ गई, सारे कंपोनेंट्स आ गए, प्लस मेरा कंपाइलर जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, कंपाइलर, डिबगर, ये सारे आ गए. तो एक्चुअली मैं ऐसे कह सकता हूं मेरा जावा डेवलपमेंट किट सबसे एक सुपर सेट है, देन उसका सबसेट है जावा रन टाइम एनवायरमेंट, देन उसका सबसेट है मेरा जावा वर्चुअल मशीन. ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? सर रिपीट अगेन ये. कौन सा वाला? सर ये जावा वर्चुअल मशीन, फिर उसके बाद. देखो मैं बता रहा था कि ये सबसेट्स कैसे बना. हाँ सबसेट्स. यस. जावा डेवलपमेंट किट हो गई जिसमें मेरा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट हुआ, प्लस कंपाइलर, डिबगर, ये जो सारे हुए मैंने बताया था, ये पूरा ये टोटल आया मेरी जावा डेवलपमेंट किट के अंदर. एंड देन उस किट के अंदर आया मेरा जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट, वर्चुअल मशीन, अदर लाइब्रेरीज और जावा के कंटेंट. एंड देन JVM के बारे में तो पता ही है, ये एग्जीक्यूट करेगा मेरा पूरा बाइट कोड को, which is JVM is platform independent. Okay. So I think अच्छा किस किस के पास JDK है इंस्टॉल्ड, मतलब कौन कौन अपने लोकल पीसी में JDK इंस्टॉल्ड रखता है, जावा डेवलपमेंट किट. मीन्स जावा का कोई भी प्रोग्राम लिखते हो या कंपाइल करते हो वो सब. सर अभी तक ट्राई ही नहीं किया जावा के आज प्रोग्राम. फर्स्ट क्लास है तो आज मैं सबको सेटअप करवा देता हूँ जावा का एकदम कंप्लीट. ठीक है. आर यू तो आई एम जस्ट सेंडिंग यू अ लिंक फॉर जावा डेवलपमेंट किट. समझ रहे हो ना जावा डेवलपमेंट किट क्यों जरूरी है? जावा डेवलपमेंट किट से क्या होगा, मेरा सारा JVM का कंपोनेंट प्लस जावा को डिबग करने का, कंपाइल करने का सब कुछ आ जाएगा. That's why I'm sending you a link to install JDK. तो ऑनलाइन कंपाइलर नहीं है क्या? ऑनलाइन कंपाइलर है, बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर भी हैं. यस सर, पीसी के अभी नहीं है. सबके पास है ना, बाकी सबके पास लैपटॉप है? यस सर. है ना, तो यस सर. थोड़ा इंटरेक्टिव रखो. मींस जवाब दो, कौन देख रहा है? तुम लोग ही तो आपस में, और कोई थोड़ी है. ठीक है, देन क्या चाहते हो मैं बता दूं ना हाउ टू इंस्टॉल जावा डेवलपमेंट किट, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक लोकल पीसी अपने Yes, लोकल sir. पीसी पे होना बहुत जरूरी है. हाँ मयंक आप बता दो. ठीक है. ओके, सो आई एम सेंडिंग यू अ लिंक फॉर JDK, जावा डेवलपमेंट किट. इसको सबसे पहले क्या करो, इंस्टॉल करो. ओपन इट एंड इंस्टॉल. ये जाओ JDK डाउनलोड एंड विंडोज 64 का यही डाउनलोड कर लो, 150 MB वाला फाइल. एंड देन साथ ही साथ विजुअल स्टूडियो कोड है किसी के पास? VS कोड? नो सर. हाँ, तो मैं VS कोड का भी लिंक डाल रहा हूँ, ये भी डाउनलोड कर लो. मीन्स अब मैं बताऊँ, देखो है क्या JDK, तो तुम्हारा जावा डेवलपमेंट किट हो गया. इसके थ्रू तुम्हारे पास सारा जावा का JVM, कंपाइलर, डिबगर सब आएगा. लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जो तुम्हें कोड करने देगा. समझ रहे हो? मीन्स इट इज नॉट कि तुम VS कोड में यू कैन ओनली कोड Java, you can code other language too, and for other language you need their development kit. ओके सर. Okay, so install कर रहे हो ना, डाउनलोड कर रहे हो सब?
Okay, till then it downloads. You can open Java Online Compiler. Everyone open it. So like जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे we'll be discussing more concept. तो तब तक के लिए उसमें कंपाइल कर लो, या किसी के पास उनके लोकल मशीन में जावा है देन इट्स वेरी गुड. Everyone open any online Java compiler, or you can use online GDB compiler for Java, which is very beginner friendly. So should I assume that everyone opened their Java compiler? Okay, let me assume that. And okay, so let's move forward to other concepts. Java variables. Okay, so these are also very important concept, Java variables. So okay, let me is my screen visible to everyone? Yes, sir, visible. Now I think and I hope that everyone has opened any Java compiler. Yes, sir. Because for learning it's very important that you should code simultaneously. Okay, so let's move. Now, anyone of you have any knowledge about variables? Any brief knowledge or anything about variables, or are you just beginners? They are beginners, just continue with theory. Right? Okay. So let's move to Java variables. So like whenever we are using any language, whether it's Java, whether it's C++, what we need to do, we always need to define a data type. Like now just suppose ki I want to store an age of a person. Suppose its age is 19. So I can write like this, age equals to 19, and age is an integer type. Okay, तो मैंने लिख दिया कि age 19 है, and now I want to print this. Age. Okay. So now let's see and compile this. Ki what happens? Okay, now it is showing error. You know why it is showing error? Because we haven't defined which data type of age it is. This is my output. This is showing error. Showing cannot find a symbol. This is because like whenever we are declaring any variable in Java, we always need to define which type of variable it is. Suppose what we have stored integer in it. Okay, so whenever we are declaring it, this is variable. Whenever we are declaring it, we need to declare its data type. So I need to write integer over here. Means integer age. Okay, so means now let's just see. Okay, I think somehow to print ln. Okay. (19) age is coming out 19. You know what is happening actually inside the process? Actually happening is कि I just took a variable. मैंने एक variable लिया जिसका नाम मैंने डाला जिसका नाम I put it age. So suppose what happened actually, Java created a memory space for this integer. Remember, this is very important. Java created a memory space for this integer, and the name of that memory space is age. Okay, Java ने एक memory space बनाया जिसका नेम है age. Means उसका it will definitely have a memory address
but for simplicity we gave name age to that memory space. So whenever we want to change it, yeah, whenever we want to use it, so we can use that name. Suppose I want to change it age to 15, so this will change. Getting my point? This is what variable. Now if you will see, the output will be 15. Okay, sorry, I think I need to. Okay, means, are you getting my point? Like, actually what is happening, Java has created a memory space, and that space of that memory means name of that memory is my age, and that in age we can store our variables, means anything that we want. But now okay, let us move with another example. Suppose we want to store a character. Let us a character means A, B, C, D, E, F, any character. So what we'll do, we'll write character. Suppose we name it as first letter, and then okay, first, sorry, this character, first letter, it is C. And now let's check what is stored in the name first letter. Okay, let's compile the program and see. I don't know what. Okay, print first letter. Okay, let us. I think there is some glitch in my JDK. I should move to this only. Okay, it is compiling. Now you can see over here. Is it visible? Means actually what is happening, like before declaring anything, we need to declare its data type. Understand. Like suppose you want to store an integer, or suppose you want to store a character. So before storing them, you always need to tell Java key what we are storing. Okay, are you getting my point? Like we cannot randomly do key first, like our second character is C. Okay, we cannot do like this, because before declaring anything, we need to declare its data type. It's a syntax of Java. Like Java does not understand key what is written, means which type of variable it is. Means whenever you need to declare any type of variable, you definitely need to declare its data type. Now, for example, now there are different data types in Java. Example, integer, character for storing characters like A, B, C, D, E, F and all. And similarly string for storing names, or for storing continuous alphabets. Suppose string is name. This is what MAYNK. This is string. Let me output this to println name. Run it. I think this is visible. Means what is happening, like before using any variable, we always need to declare its data type. Suppose we here we are using string, so we need to declare first that we are using string, so Java will know they are using string. And it is not necessary that string is any name. String can be like this also. Okay.
Okay. रूपाली, इट्स नॉट स्ट्रक्चर, इट्स सिंटैक्स. आई मीन टू से कि अगर अपन जावा यूज कर रहे हैं और जावा में अपन को कोई भी वेरिएबल, अगर जावा में हमें कोई भी वेरिएबल लेना है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक आई टुक वेरिएबल नेम, हमने वेरिएबल लिया नेम, या हमने वेरिएबल लिया फर्स्ट लेटर. ओके. यस यस सर, आई नो, बट मैं ये कह रही हूँ कि सर जो मतलब स्ट्रक्चर जो बनाते हैं हम, सबसे पहले क्लास, फिर वो, तो वो बता दीजिए पहले, फिर ये अच्छा, वेरिएबल नेम. यस सर. देखिए, ये तो अपन जब ऊप्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस पढ़ेंगे, तब बताएंगे. अभी के लिए तो वेन एवर यू ओपन एनी जावा फाइल, जस्ट नो कि जावा फाइल खुलेगी, देन उसमें you will definitely have this structure. Whenever you will open any Java file, except this, you will have this. Means you will have definitely these will be given to you, and you need to write your program in this. Are you getting my point? Yes sir, yes sir. Yeah, whenever you will open any Java file, you will get this, and you need to code here. Yes. बाकी चीजें क्लियर है? Yes sir, clear. Okay, so we were discussing about variables in Java. So like there are different types of variable too. जैसे मैंने बोला string हो गई for displaying string. Now there are float. Suppose someone want to feed marks, किसी को नंबर स्टोर करवाना है मेरे वेरिएबल में. Okay, and the number is 8.5. So integer cannot store 8.5. For that we need a float data type, and Java provides us float. Suppose let us name it marks. This is 8.5 float. We need to write it like that, 8.5 and F for float. So just println marks. And it is not. सी लैंग्वेज में प्रिंट कराने के लिए प्रिंट बस लिखते, प्रिंट एफ लिखते हैं. तो जावा की लैंग्वेज में ये प्रिंट एलन लगाना पड़ता है. Whenever we are using Java, जब भी जावा यूज करते हैं अपन को जावा में ये system.out.println लिखना पड़ता है. ओके सर. ये जरूरी नहीं है, तुम लोग याद रखो. इट्स लाइक जब अपन विजुअल कोड वाला JDK इंस्टॉल हो जाएगा, अपन डायरेक्ट ऐसे हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं प्रिंट ln, देन यू विल गेट लाइक अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा. यस सर. Okay, so things are clear. Means let me give you one more example. It is not necessary कि we only need to store, like in this age we can only store 19. In this we can store this also. Are you getting my point? Yes sir. Means we can store, like we have declared data type. अपन हम लोग declare कर चुके हैं data type integer है. So we can store any integer in it, but store integer ही करना है. Similarly we have declared data type as character, so we can store any character in it. Hope this makes sense. हेलो सर. ये इंटीजर की रेंज से तो बहुत ज़्यादा हो गया. इसमें आपने जो वैल्यू रखी है इसके लिए तो हमें लॉन्ग रेंज का कुछ और लेना पड़ेगा फिर. नहीं, यस मैं बता रहा था. देखो जो मैंने इंटीजर रखा है वो है 1 2 3 4 5 6 7. नो, we use long integer when our number is greater than 2 raised to power 31 minus 1. 31 minus 1. Yes sir. Then we need to use long integer. Okay, अपना इंटीजर, हमारा इंटीजर में 2 raised to power means negative of 2 raised to power minus 31 means 2 raised to power 31 negative, 2 raised to power 31 negative to 2 raised to power 31 minus 1 positive. इतना स्टोर हो जाता है easily in our integer range. And now if we want to increase our range, we need to declare long integer. Suppose I need to declare something around 10 power 10 which is greater than 2 raised to power 32 minus 1. So what we will declare? We will declare it as long integer. And कैसे declare करूँगा मैं?
मैंने डेटा टाइप लिखा लॉन्ग इंटीजर, ओके, देन आई रोट वेरिएबल नेम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, I cannot use same variable name again and again. Are you getting my point? I cannot use age again here cause age अपन पहले हम लोग पहले ही declare कर चुके हैं. Declare. Yes, sir. So let is age 2 and this is now this is greater than 2 raised to power 32 minus 1. That's why we used as long integer. Getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so are you guys writing these? लिख रहे हो सब ये अपने अपने कंपाइलर में या ऑनलाइन कंपाइलर में? Okay, let us assume you all are writing cause you need to write to learn. You need to write by yourself. That's very important. Then only you can learn. Now, let me tell you. And one more field. There is one more data type in Java, which is Boolean. Boolean. And now, Boolean होता क्या है? Boolean is nothing else than true or false. Boolean is False. आई होप पता होगा, नहीं भी पता होगा. जैसे बूलियन होता क्या है कि वेन एवर आई वॉन्ट टू डिक्लेयर अ थिंग एंड आई नो इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, यहाँ तो ट्रू या फॉल्स, देन आई डिक्लेयर बूलियन. मैंने बूलियन लिया, आई नेम्ड इट एज ट्राई, आई ट्राइड एंड देन आई सेट इट वैल्यू टू ट्रू. तो मतलब ट्राई इज ट्रू, ट्राई इज अ बूलियन टाइप विच इज ट्रू. गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. So this was all about variables. Means there are variables which we can declare. Okay. Means always we declare variable, but most important thing is before declaring we always need to tell Java their data types. वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हमें हमेशा जावा का डेटा टाइप बताना ही होगा. मैं एक और इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ. सपोज मीन्स आई एम जस्ट राइटिंग इट टू क्लियर सिंटैक्स, ताकि सिंटैक्स के लिए क्लियर हो जाए. जैसे इंटीजर नंबर, एंड नंबर कैन बी एनी इंटीजर, सपोज 67 or 8, and then a colon. So this is a way to declare a variable in Java. I hope this makes sense. Okay, so this was an example of this only. Now, another important thing is typecasting. Okay, so let me tell you, anyone knows about typecasting? Means like I have my float which is presently giving output 8.5. Not a statement. Okay, let me remove this. Okay, let me run this. Okay, so initially you can see output for my float is 8.5. Is it visible to everyone? Yes, sir. And suppose I am using typecasting. Actually, look at here. What does typecast do? Typecast convert one data type to other data type. Suppose I needed an integer, but गलती से मैंने क्या किया, मैंने उसको float declare कर दिया. Okay, so now how to convert that float back to an integer? That's where typecast will be used. Means converting from one data type to other data type. मैंने लिखा integer number, then for typecasting I'll write integer,
एंड टाइप कास्ट किसको करना है, मार्क्स को, यस मार्क्स को. लेट मी प्रिंट मार्क्स. Wait a minute. Okay, why it is not typecast? Float. You are converting integer to float, a small data type to bigger data type. That's why I think it is not typecasting. Can you please repeat? You are typecasting integer to float, a small data type to a large data type. Then I think that's no, why no, no. It typecasting. should typecast. Okay. Wait a minute. Okay. Like, let me write it here again. It's a like integer age because this is my local computers. This is my local PC1, and I did same. I typecast. Integer. I'm converting here float to an integer. Is integer. Suppose let me declare a float first, float float, and f as 5.21 f. Okay. Now what I can do, I can take an integer number. It is an integer f, and now system out print ln number. Okay, save the code. Is it visible? Like, suppose what I was talking like, if first of all, like, let me print out f here. Okay, f. Now you can see the difference. Okay, is it visible? Let me Yes, sir. Actually, what happened? I took a float. Its value was 5.21. I printed its value. It is visible to you, 5.21. And now, what typecast is? I changed the data type of my float. I changed the data type of my float to an integer. And as it changed to an integer, it rounded off to nearest integer. मैंने फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करा, ये नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ हुआ, एंड इट इज डिस्प्लेइंग 5. आई थिंक इट इज क्लियर. ये क्लियर है सबको? मीन्स दिस इज व्हाट टाइप कास्टिंग. इफ समवन डिक्लेयर्ड एनीथिंग, लाइक किसी को फ्लोट चाहिए था बट समवन डिक्लेयर्ड एन इंटीजर, और समवन डिक्लेयर्ड एन इंटीजर बट वांटेड फ्लोट, means so we can use typecasting. Now let us move to another concept of Java operators. Means these are some basic concepts. Okay, so let us focus on operators. So, like, what is operator? If I'm writing a number, suppose integer number, that is 10, and again integer number 2, which is 20. Okay, now I want to add these two numbers. Getting my point? I want to add these two numbers. So with the help of operators, like in mathematics we do, अपन करते हैं ना मैथ्स में, हम लोग करते हैं मैथ्स में, जैसे we are adding something or we are subtracting something, we are multiplying something.
or we are dividing something. So that's what operator is. It is used to add, subtract, divide, and everything. Let me give you an example. So I think things will be more clear. Suppose integer number 1, number 2, integer number 3 is num plus number 2. Let me write here number 1. And let me print out. Print ln number 3. Okay. $30. So because 10 plus 20 is 30. So actually this is what operators are used. Operators are used to add or subtract or multiply things. Are you getting my point? Suppose instead of this we take a number 4. Integer number 4, and that is I want number 2 minus number 1. And let me print this. I want to print number 4. Look at the output. What actually happened in number 4? Number 4 operated on, means number 2 operated on number 1 with a subtraction sign. Number 2 was 20, number 1 was 10. 20 minus 10 is 10. So 10 is your output. Similarly, an example of other operator is multiplicative operator. That is number 1 star number 3. Okay, let me put a number 5, I think number 5 star number 2. Let me output it. Number 1 star number 2. Okay, sorry, number 5 I need to output. Okay, so number 5 is what? Number 1 star number 2, which was number 1 20 star 10, which is 200. So actually these all are my operators. Are you getting my point? These operators are used to add, subtract, multiply, divide, or one more important thing, which is reminder. Do you guys know what is reminder? Modulus. Yes, sir. So that can also be used. Suppose, let me give you an example. Number 6, which is what? Number 1 percent number 2. So can anyone tell me, like according to him or her, answer क्या होगा? 0. It is not a divide. It is a modulo operator. नंबर 1 में 10 है, नंबर 2 में 20, तो 10 2 20, 0. नहीं, नंबर 1 में 10 है, नंबर 2 में 20 है. मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या देगा? रिमाइंडर देगा. 10 आएगा. Getting my point? It is what? Reminder when 10 is divided by 20. So 10 is divided by 20. Reminder is of course 10 because, okay, getting my point? Let me print it also. Number 6. Okay, 10 is visible. And now a last operator. Means it is not a last operator. There are many types of operator, but while starting, I think these 5 are sufficient. Then integer number 7, suppose it is number 1 star number 2.
Okay, number 1 divide by number 2. Now can anyone predict output? Output बता Zero. सकता है कोई? Zero. 0, because ये डिवाइड ऑपरेटर है. 0. So operators are clear? यस सर. आगे बढ़ते हैं. So I hope सब कुछ समझ में आ रहा होगा. सर आपने ऑनलाइन कंपाइलर में शायद वो टाइप कास्ट ठीक किया था पर वेरिएबल गलत प्रिंट करा दिया यहाँ पर. ये नंबर प्रिंट होगा यहाँ पर, हाँ, नंबर प्रिंट होगा. इस वजह से रॉन्ग आउटपुट आ रहा था. सही. एट नंबर गलत लिख दिया था. ओके, सो यहाँ तक आई अज्यूम कि इट इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, कैन समवन टेल मी, did their JDK and Visual Studio Code downloaded so we can set up them for you? Okay, देखो खुद से कर लेना, कर सको तो, नहीं तो ping me, I'll make them set up for you again. Okay, now does someone know about loops? I think every one of you must have heard at least a time what is loop. Okay, let me clear this code. Okay, so now loops होता क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि it is something like कोई लूप होगा. लूप से यही तो जनरली दिमाग में आता है कि कोई ना कोई लूप होगा या कोई ना कोई iteration must be there which is occurring again and again. Getting my point? कि what is loop? I am assuming कि किसी ने बोला लूप क्या होता है, मेरे दिमाग में तो यही आएगा ना यार. Means कि there is something which is iterating again and again and again and again. Normal definition of loop. But now, what is loop in programming language? Actually, our loop is used to iterate through same code again and again. Means, let me give you a better example. Don't look at loop syntax now. अभी loop के syntax को मत देखना, just समझना कि what is happening actually and loop कर क्या रहा है. I'm writing a loop. I. Okay. So कोई बता सकता है आउटपुट क्या होगा? Can anyone tell me? 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4 5. Sure हो? 0 1 2 3 4. Okay, so आउटपुट देख ही लेते हैं. आउटपुट इज 0 1 2 3 4. अगेन नाउ टेल मी, अब क्या होगा आउटपुट? अब होगा 0 1 2 3 4 5. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट लूप्स. एक्चुअली लूप होता क्या है? whenever we have a sample code or whenever we have a code and we want that code to execute again and again for certain amount of reason, so that's why we use loops. Okay, इधर हो क्या रहा है? मेरा सिस्टम प्रिंट करवा रहा है I again and again. Getting my point? Instead of this, I think I can also write like this.
println 1 ये देखना मीन्स मैं बताना चाहता हूँ कि let me save it and then compile and run means run the code. What is my output? 1 2 3 4. So actually I want to tell you कि what are loops. The output is same. What we want integers from 1 to 4. वन पॉसिबल एक तरीका तो ये है कि मैं डायरेक्ट लिख दूँ सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन वन, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन टू, प्रिंट एल एन थ्री, प्रिंट एल एन फोर. एक ये हो गया. एंड एक हो गया आई यूज अ लूप आई वन टू आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस एंड आई प्रिंट इट लाइक दिस. सो विच वन इज बेटर? कौन सा बेटर लगा आप लोगों को? यू थिंक यूजिंग लूप्स ना? Is it clear? It means what are loops used for? Actually loops are used to reduce writing code again and again. काम तो करना यही था, मुझे 1 to 4 आउटपुट चाहिए था. One possible way was writing it through loops 1 2 3 and 4, whereas other possible way was using loop and writing. आउटपुट सेम ही है, जस्ट कोड लिखने का तरीका डिफरेंट है. And this is more easy to understand, means I'll tell you the syntax, but this is more easy to execute. अब suppose someone wants कि 10,000 तक इंटीजर लिख दो. अब ऐसा तो हो नहीं सकता मैं बैठ के 1 2 3 4 5 6 10,000 तक लिखूं. इट इज़ नॉट फीजेबल. तो मैं क्या करूँगा, आई कैन इंस्टीड ऑफ 5 आई विल राइट 10,000 ओवर हेयर एंड देन आई विल रन इट. तो मुझे मेरा आउटपुट मिल जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Now let us focus on types of loop. Okay. Now loops are mainly of two types. One is while loop and other is for loop. Actually दोनों का काम सेम ही है, just to create loops, but the thing is their syntax is different. जिसको जो easy लगे he or she can use that, no problem. So let us start with while only. देखो, for initializing a while loop, you just means, let me tell you more. अब यहाँ देखना एक्चुअली हो क्या रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखना, आई टुक माई लूप स्टार्टिंग फ्रॉम I equals to 2. Okay, just focus on while loop. Okay, is it visible to everyone? जैसे मेरा इंटीजर लिया मैंने x equals to 0. वेरिएबल डिक्लेयर करना मैंने सिखाई दिया था. मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, वैल्यू है 0, एंड मैंने इसको मेरे लूप के अंदर इंसर्ट किया. एंड अब मैंने लूप के अंदर तो इंसर्ट कर दिया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं लूप के अंदर इंसर्ट करके सिर्फ चला दूं एंड लूप एग्जीक्यूट ही करता जाए तो लूप ब्रेक कब होगा? ऐसे तो मेरा लूप इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता जाएगा, जो कि फीजिबल नहीं है और मेरा पूरा सिस्टम का मेमोरी खा जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लूप्स को मैंने एक वेरिएबल लिया x एंड मैंने उसको लूप में इंसर्ट करा. ओके, सपोज मैंने लिया while इंटीजर x is 0, मेरा लूप आया while एंड I'll print system dot out dot println x and x plus is equal to 1. Okay, so can
Anybody predict what will be the output of this code? Means actually होगा क्या? This is my while loop. So this integer x will go inside my loop. Actually whenever the code executes ना, जैसे जैसे कोड एग्जीक्यूट होगा वैसे मेरा लूप आया ये, एंड जब मेरा कोड इस लूप के अंदर जाएगा ना, तो दिस कोड विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग. सो वेन एवर इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, मेरा एक्स प्रिंट होगा. बट ये तो चलता ही जाएगा, कभी रुका ही नहीं. गेटिंग माई पॉइंट? एक्स प्रिंट होगा, फिर से एक्स प्रिंट होगा, फिर से एक्स प्रिंट होगा. मैं ये प्रिंट इसलिए करके नहीं दिखा रहा क्योंकि ये मेरा लोकल कंपाइलर है. अगर फिर मैंने इसको क्लोज नहीं कराना सब कुछ, देन ये प्रिंट होता ही जाएगा, मेरा सारा मेमोरी एग्जीक्यूट कर देगा, जो मेमोरी मैंने इस प्रोग्राम के लिए अलोकेट करके रखी है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स ये एक्स अगेन एंड अगेन प्रिंट होगा. तो नाउ टू स्टॉप इट फ्रॉम प्रिंटिंग अगेन एंड अगेन, इस जगह पे वी नीड टू ऐड कंडीशन. ओके, condition. Getting my point? Here is what my condition, and at every iteration, हर iteration पे क्या होगा, ये मेरी condition check होगी कि, और अगर ये condition true होगी तभी मेरा loop आगे बढ़ेगा. Are you getting my point? Suppose, for example, मैं एक कंडीशन डाल देता हूं, while x is less than 5. Getting my point? So this is my condition. Okay. Otherwise अगर मैं ये कंडीशन नहीं इनपुट करूंगा लूप में, then loop will run infinitely. So this is what my condition called as. I just put it this condition, means loop will execute till x is less than 5. Whenever x is greater than or equal to 5, this loop will break. Okay. But यहाँ मैंने एक चीज और करनी है, which is x plus 1. You know मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि मैं x को तो कहीं भी चेंज ही नहीं कर रहा. x was 0 initially in my loop. So after printing again x will be 0. After printing again x will be 0 means x will be 0. X is not incrementing, which is again causing an infinite loop. Now let us run it. Let me run it. Okay, let me save it. Okay, now let me run it. I think ये यही हो गया. Actually what I did, मैंने actually क्या करा, मेरा कोड सेव नहीं करा without writing x plus 1 and then रन कर दिया. So you can just look at the terminal. चलो एक infinite loop का एग्जाम्पल मिल गया. मेरा लैपटॉप भी हैंग कर रहा है because now what actually happened, मेरा लूप का टर्मिनेटिंग कंडीशन तो मैंने डाला ही नहीं, तो लूप इनफाइनाइट टाइम रन कर रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनफाइनाइट टाइम रन कर रहा है. यहाँ देखो मैं कितना नीचे ले जाऊँ, इट विल रन. Everyone is getting my point? ये था. Now अब मैंने कंडीशन डाल दी कि x must be less than 5. If x is less than 5, then it will execute. Else if x is greater than 5, it won't execute. Are you getting my point, everyone? Okay, let me close this because मेरा loop infinite पहुंच चुका है and it is running continuously. Okay. Let me come here. So okay, just tell me, are things clear? What are loops? Means actually loop is something. Loop है क्या? Loop किसी भी कोड को again and again iterate करने का एक तरीका है. But the most important thing is कि लूप शुड हैव अ टर्मिनेटिंग कंडीशन. अगर लूप में टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं होगी
then loop will execute again and again and again and again. Getting my point? And loop again and again execute होगा तो मेरी मेमोरी फुल हो जाएगी, एंड जरूरी नहीं है वो मेरे काम का हो. मैं एक बार फिर से फॉर लूप वाइल लूप लिख के दिखाता हूँ. इंटीजर x इक्वल्स टू 0 एंड व्हाट आई विल से वाइल. ये सिंटेक्स होता है वाइल लूप लिखने का. यू नीड टू राइट वाइल एंड योर कंडीशन. माई कंडीशन इज x मस्ट बी लेस देन 5. गेटिंग माई पॉइंट? और x मस्ट बी लेस देन 10 और एनीथिंग. My condition is x must be less than 5 and I'll print the value of x. And what I'll do, I'll increment x. You know why we need to increment x? Cause अगर अपन x को increment नहीं करेंगे ना तो x बढ़ेगा नहीं, and x will again till infinitely, फिर से for infinite amount of time x will be less than 5. That's why. Oh, let's compile and check. 0, 1, 2, 3, 4. So this is a format of writing for loop. Actually, let me tell you a bit. We need to write while. While loop लिखते समय अपन को लिखना है while and then terminating condition. कि ये ऐसी कंडीशन होगी जब तक दिस. हाँ इसमें 0, 1, 2, 3, 4 मतलब कैसे आया एक बार आप दिखा लें. पहले बता दो नितिन, सब समझ में आ रहा है ना? समझ में तो आ रहा सर, लेकिन x की वैल्यू 0 है तो मतलब अंदर एंटर ही नहीं होगा वाइल में. नहीं तो 0, 1, 2 नितिन सुनो, देखो x की इधर फोकस करना. x की वैल्यू 0 है और वाइल लूप क्या कह रहा है? वाइल लूप कह रहा है कि जब तक मेरा x 5 से छोटा है. गेटिंग माय पॉइंट? हाँ अच्छा, लेस देन कर रहा है. ठीक है, जब तक मेरा x 5 से छोटा है. ठीक है सर, ठीक है. क्लियर है ना? जब तक मेरा x 5 से छोटा है, जैसे ही मेरा x 5 से बड़ा होगा या बराबर होगा तब ये ब्रेक कर जाएगा. ठीक है सर, ठीक है. अच्छा नितिन, कोई कंपाइलर यूज कर रहे हो अभी? सर मैं आईडी यूज करता हूँ, इंटेलिजे. अच्छा सही, तो उसमें कोड करते जाओ साथ साथ. जावा जेडी के लिंक भेजा था ना मैंने, उसको इंस्टॉल करो या मुझे पिंग करना, मैं तुम्हें इंस्टॉल करवा दूंगा पूरा. सर पहले से ही. हाँ तो लिख रही हो ना कोड साथ साथ, क्योंकि तभी पता चलेगा. मैं सबको यही कह रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू गेट एक्सपर्ट देन यू नीड टू प्रैक्टिस. सो समझ में आ गया कैसे वर्क करा है वाइल लूप? मेरी कंडीशन. अब एक और चीज़ दिखाऊं. दिस इज, देखो लूप की कंडीशन है. मैं एक चीज़ बताता हूँ. वेन एवर वी आर राइटिंग लूप, वेन एवर we are writing loop, there are 3 conditions. Means first one is terminating one condition जो कि मैंने ये बताई. terminating condition while x is less than 5. okay, and another one is incrementing condition. incrementing Here are you looking कि मैं x को कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट कर रहा हूं. अगर मैंने x को इंक्रीमेंट करना बंद करा तो मेरा हमेशा ही x लेस देन 5 रहेगा और कभी लूप से बाहर नहीं आएगा. तो दैट्स व्हाई दीज 2 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. टर्मिनेटिंग कंडीशन एंड इंक्रीमेंटिंग. टर्मिनेटिंग कंडीशन, ताकि टर्मिनेटिंग कंडीशन पूरी होते ही मेरा लूप टर्मिनेट हो जाए, एंड इंक्रीमेंटिंग मेरा जो भी वेरिएबल है मैं उसको इंक्रीमेंट करूं ताकि वो टर्मिनेटिंग कंडीशन तक पहुंचे. क्लियर? एंड थर्ड थिंग इज बॉडी ऑफ लूप. गेटिंग माई पॉइंट? ये बॉडी है मेरे लूप की. मैं मतलब लूप के अंदर जो भी कोड लिखूंगा दैट इज बॉडी ऑफ लूप. अब एक अच्छा एग्जांपल देता हूं. आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो. तो आई कैन गिव यू अ गुड एग्जांपल, means a better example to understand loops. Suppose integer I, मैंने एक वेरिएबल लिया I, डिक्लेयर करा 1, and what I want sum of first 5 numbers. Okay, getting my point? I want sum of first 5 numbers. So can anybody suggest me मैं लूप यूज करके सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स कैसे ला सकता हूँ?
मीन्स जरूरी नहीं है 5 हो, कभी बड़ा प्रोग्राम होगा यू विल गेट 1000 नंबर्स, तब तो लूप ही यूज करना पड़ेगा ना. So can anyone suggest me? सम इक्वल टू सम प्लस एक्स और एक्स में इंक्रीमेंट होता रहेगा. वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही होगा. सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स एंड एक्स इंक्रीमेंट होता रहेगा. एंड लास्ट में वी कैन प्रिंट एंड चेक द वैल्यू ऑफ माई सम. $15, 1 to 5. क्लियर है? अच्छा, कैन एनीवन टेल मी इफ यू वांट सम फ्रॉम 0 to 4 तब क्या करेंगे? लेस देन 4 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू मतलब कंडीशन जो है लेस देन 4 हो जाएगी. नहीं, अब एक चीज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ विच यू आर नेग्लेक्टिंग. मैंने एक्चुअली क्या करा, मैंने लिखा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. मीन्स हुआ क्या, मेरा वेरिएबल था x, मैंने उसको इंक्रीमेंट कर दिया 1 से. गेटिंग माई पॉइंट. इनिशियली लूप में हुआ क्या होगा, मैं एक बार 5 के 5 लिख के बताता हूँ. इनिशियली हुआ क्या होगा, x 0 रहा होगा, देन कंडीशन लगी होगी x इक्वल टू एक्स प्लस 1. नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंड, x 0 से 1 बना होगा. ये क्लियर है? x इक्वल टू एक्स प्लस 1, x 0 to 1 हुआ होगा. एंड नाउ अब मैं कह रहा हूं सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स. इनिशियली मेरा सम कितना था 0, एंड अब सम में क्या ऐड करूंगा, x की वैल्यू कितनी हो गई 1. अब मेरा सम कितना हो जाएगा 1. सिमिलरली नेक्स्ट टाइम मेरा x कितना है 1 है, x क्या होगा x प्लस 1 विच मेक्स माई x 2. And what will happen now, sum is equal to sum plus x. अब मेरा सम कितना हो जाएगा 3. नितिन समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है? हाँ सर. तो अब ये समझ रहे हो ना कि अगर मैं यहाँ पे 4 तक लिखता हूँ तो 0 to 4 का सम नहीं आएगा, सम आएगा 1 2 3 4 का. क्लियर है? हाँ. और 0 to 4 का चाहिए तो मैं x को बाद में इंक्रीमेंट कर देता हूं. समझ रहे हो ये? मतलब मैं पहले स्टेटमेंट लिखा है जावा वो पहले एग्जीक्यूट करेगा. मैंने लिखा है सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, तो अब पहले एक सेकेंड मैं इसको लिख देता हूं. अब एक्चुअली होगा क्या, ये बाद में होगा. पहले सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, एक्स कितना था 0, मेरा सम कितना हो गया 0. अब मेरा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एग्जीक्यूट होगा और x 0 से 1 हो जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट? अब क्या होगा, अब होगा सम इज इक्वल टू सम प्लस x. व्हाट वाज माई x हियर, x क्या था यहाँ पे मेरा 1 था, सम कितना हो जाएगा 1 एंड x इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2. सो आई होप दिस ऑल मेक सेंस. वाइल लूप क्लियर हो गया हो कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं. गेटिंग माई पॉइंट? ये नोट्स में है वैसे, बट आई एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल एंड आई होप कि क्लियर हो गया हो. ये होता है वाइल लूप. अगेन मैं बताऊं, वाइल लूप इज योर टर्मिनेटिंग condition and then your incrementing operation. Okay, sorry, incrementing operation, and then your body, or we can say कोड जो कि एग्जीक्यूट होता है. इज इट क्लियर है? ये टर्मिनेटिंग कंडीशन अपन डालते हैं वाइल लूप के अंदर, इंक्रीमेंटिंग कंडीशन और बॉडी आती है मेरे पैरेंथेसिस के अंदर. अब जैसे मैंने बताया था सिमिलरली फॉर लूप होता है, तो एक बार फॉर लूप देख लेते हैं. व्हाट इज फॉर लूप?
for loop is also similar, but the thing is syntax थोड़ा सा change है. Are you getting my point? For loop भी similar है, बस syntax थोड़ा सा change है. बाकी it is a for loop. मैं एक बार एग्जांपल दे देता हूँ. सपोज आई एम राइटिंग सिंटेक्स, मैं बता दूंगा लास्ट में सिंटेक्स, जस्ट एक बार देखना कैसे लिख रहा हूँ. println आई, मैं यहाँ पे लिखूंगा आई. ठीक है, तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं इसको एक बार रन, कोई बता सकता है मुझे कि आउटपुट क्या होगा इसका? कोई भी? ना मेरी क्लास चल रही है, वो मैं पढ़ा रहा हूँ. अच्छा, कोई बता सकता है मुझे इसका आउटपुट क्या होगा? कोई भी? देखो इसको रन करते हैं, इधर देखते हैं आउटपुट क्या होता है. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4. गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका आउटपुट होगा 0 1 2 3 4. समझ में आ रहा है कैसे? अब देखते हैं इसके अंदर हुआ क्या था. मैंने मेरी लूप्स की 3 कंडीशन डिफाइन करी थी. व्हाट आर 3 कंडीशन? टर्मिनेटिंग कंडीशन, इंक्रीमेंटिंग ऑपरेशन एंड बॉडी. गेटिंग माई पॉइंट? एंड फॉर लूप के अंदर क्या हुआ? मेरा टर्मिनेटिंग कंडीशन तो ये रही, एंड इंक्रीमेंटिंग कंडीशन मेरी ये रही. गेटिंग माई पॉइंट? तो हाउ वी नीड टू राइट फॉर लूप. फॉर लूप लिखने के लिए चीजें तो सेम ही चाहिए, टर्मिनेटिंग कंडीशन, इंक्रीमेंटिंग ऑपरेशन एंड बॉडी. बस मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि मैं, जैसे मेरे वाइल लूप में मैं इंटीजर पहले डिक्लेयर कर रहा था, जस्ट ये सब फॉर लूप में ही होगा. गेटिंग माई पॉइंट? मुझे वाइल लूप लिखना होता तो मैं लिखता इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, ये मैंने डिक्लेयर करा, जबकि फॉर लूप में यहीं पे डिक्लेयर कर दिया. एंड नाउ अब मैं लिखूंगा वाइल टर्मिनेटिंग कंडीशन आई इज लेस देन 5. मेरी फॉर लूप की टर्मिनेटिंग कंडीशन ये रही. एंड नाउ मेरी इंक्रीमेंटिंग कंडीशन आई प्लस इज इक्वल टू 1. एंड सिमिलरली मेरी फॉर में है इंक्रीमेंटिंग कंडीशन. Is it clear? Like how we need to, what is the syntax of for loop and how we need to write for loop. तो ये था मेरा for loop. Try to code continuously. जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ट्राई करो, कोड करते जाओ. I think I am giving you sufficient time to code on yourself. If you are doing this, then you can learn very easily because things are easy. कोई हार्ड नहीं है, जस्ट 1-2 बार की प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. ओके, सो दिस वाज माय फॉर लूप फॉर इंटीजर आई 0 2 आई इज लेस देन 5 आई प्लस 1. नाउ मैं एक सपोज सेम चीज करता हूँ. इंटीजर सम 0 है एंड आई डू लाइक सम प्लस सम इज इक्वल टू सम प्लस आई. ओके, एंड println sum. सो कोई मुझे बता सकता है आउटपुट क्या होगा? अभी अभी तो करा था सर वाइल लूप में, ये भी तो वैसा ही होगा. बता सकता है कोई? कोई भी? हाँ यस सर 0. साक्षी बता सर रही प्रोग्राम थी कुछ. दिखाइए. हाँ, ये रहा मेरा प्रोग्राम. सर 10. 10. अच्छा, मैंने प्रिंट ही करवा दिया. ठीक है, इट विल बी 10. आर यू गेटिंग? हो क्या रहा है? एक्चुअली सम प्लस इज इक्वल टू आई. नाउ इनिशियली क्या था? इनिशियली आई वॉज 0. गेटिंग माई पॉइंट? आई वॉज 0 एंड व्हाट विल हैपन? सम प्लस
सम इज इक्वल टू सम प्लस आई. ओके, देन मेरा सम, इस इंक्रीमेंटिंग ऑपरेशन के कारण ये मैंने पढ़ाया था ना ऑपरेटर, दैट इज सेम. मैं क्या कर रहा हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई. तो मेरा ऑपरेटर है ये, प्लस ऑपरेटर. मैं सम और आई को प्लस कर रहा हूँ. सम क्या बना, 1. गेटिंग माई पॉइंट. नाउ लेट मी टेल यू अ मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस लूप एंड मेरा होगा क्या. मेरा फॉर लूप है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप की जो भी बॉडी है ना वो पहले एग्जीक्यूट होगी. गेटिंग माई सर पॉइंट. सम की वैल्यू तो वन है ना सर, 0 है. हाँ और आई की वैल्यू भी 0 है, तो 0 + 0 0. हाँ, सॉरी. ओके, नेक्स्ट इंक्रीमेंट में इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट इंक्रीमेंट में मेरा आई हो जाएगा 1 1 एंड सम इज इक्वल टू सम 2. प्लस आई. सम हो जाएगा 2. यस सर. एक्चुअली नाउ लेट मी टेल यू मेजर डिफरेंस. देखो, यस सर. मेरा फॉर लूप है, ये कोई भी नहीं बताता, ये मैं बहुत डीपली बता रहा हूँ. एंड आई वांट कि आए हो, टाइम दे रहे हो, तो यू शुड लर्न एंड प्लीज प्रैक्टिस करना जाकर. देन ओनली थिंग्स विल बी क्लियर. ओके, यस सर. नाउ एक्चुअली हो क्या रहा है, जैसे मैंने लिखा आई 0 से आई इज लेस देन 5, आई प्लस इक्वल्स टू 1, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई. तो मेरा ऐसे चल रहा है, आई 0 था, सम 0 हुआ, आई 1 था, सम 1 हुआ. ठीक है, लेकिन सपोज जैसे वाइल लूप याद है किसी को, मैंने वाइल लूप लिखा था x इज लेस देन 5, इंटीजर सम 2, मैं एक नया वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ सम 2, एंड मैं बोल रहा हूँ x इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड सम 2 इज इक्वल टू सम 2 प्लस x एंड प्रिंट ln सम 2. तो अब कोई मुझे बता सकता है सम 2 और सम 1 क्या होगा, वैल्यूज ऑफ सम 2 एंड सम 1. कोड दिख रहे हैं ढंग से? कैन एनीवन ट्राई, कोई ट्राई करेगा बताने के लिए? सम पहले सम बताओ. 2 सम 2 10. एंड सम 1 जो मेरा सम है, सम मेरा सम 1 है मेरा फॉर लूप वाला एंड सम 2 है मेरा वाइल लूप वाला. तो जो भी बताए वो बताना, फॉर लूप वाले का आंसर क्या होगा, वाइल लूप वाले का आंसर क्या होगा. कैन एनीवन गेस? सम 2 का अभी तो अपन ने देखा था. हाँ बोलो. सर दोनों का 10 फॉरवर्ड. दोनों का 10 आएगा. नहीं, कोई और? एक बार दिखाना वाइल सर का फिर से. 10 और फॉर का 10. फॉर का 10 और वाइल का? एक बार फिर से 9. दिखाना सर. हाँ, ये रहा. अब नितिन बता सकते हो? एक मिनट सर दिखाना सर, मैं बीच में लीव हो गया था. हाँ, x की वैल्यू तो बनी रहेगी हर बार, क्योंकि x में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, हर बार x की वैल्यू बनी रहेगी. x में वाइल लूप में मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ना x में, ये वाइल लूप का आंसर पूछ रहा हूँ मैं. अच्छा, वाइल लूप का पूछ रहे हो. एक सेकंड. चलो मैं ही बता देता हूँ. एक्चुअली सम 2 होगा 15 एंड सम 1 होगा 10. सर वाइल की
3 आएगी और 4 क्या? की 10 आएगी। फिर से रिपीट करना, कौन बोल रहा था? अगर बोलने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग लिख भी सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं पढ़ लूँगा। आवाज़ फिर नहीं आ रही। बाई की Actually, you are not audible. You can write in chat box. अच्छा, okay, let me explain. Leave. हो क्या रहा है? Now just look. Actually, what is happening? Initially, I am talking about while loop. While loop में गया, सबसे पहले कौन सी कंडीशन लिखी हुई है? सबसे पहले क्या कोड लिखा हुआ है? x equals to x plus 1. So this will execute. Getting my point? And after this, this will execute. Okay. So when first time it executed, x क्या हुआ? 1. And when this will execute, मेरा sum 2 क्या हो जाएगा? Getting my point? 1. Similarly, next time x becomes 2. Sorry, x becomes 2. 1 2. X initially I'm talking about here. x क्या था? x equals to x plus 2 1. तो x पहला जैसे मेरी कंडीशन एग्जीक्यूट हुई, मेरा x क्या हुआ? 1 3 सम 2 3 है, और सम 2 क्या होगा इस केस में? सम 2 हो जाएगा 3. गेटिंग माई पॉइंट? सम 2 नहीं 3 3. यस सर आई होप ये क्लियर हो रहा हो. जबकि इस लूप में क्या होगा? मेरी बॉडी क्या है? यस सर एज बॉडी में गया, सो व्हाट इज माई बॉडी? माई बॉडी sum1 is equal to sum1 plus I. So first this will execute. Getting my point? Sum1 is equal to 0 because I is 0. And after this I will increment after this. So means the condition in the for loop execute at last. Getting my point? मतलब जब पूरा मेरा बॉडी रन हो जाएगा ना, तब मेरा फॉर लूप का इंक्रीमेंट होगा. समझ रहे हो ये सारे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा पूरा जो भी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, जो भी मैं अंदर इस बॉडी के लिखूंगा, ये तभी इम्प्लीमेंट होगा जब मेरा पूरा फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा. जबकि वाइल लूप में ऐसा नहीं होगा. मैं वाइल लूप में मैं जहाँ भी लिखूंगा ना, जैसे मैंने x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 पहले लिखा, तो ये पहले इंक्रीमेंट होगा. गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाद में लिखूं, देन ये बाद में इंप्लीमेंट होगा. मीन्स वाइल लूप में वेयर यू विल राइट कोड फ्रॉम टॉप टू, ऊपर से नीचे तक, जहाँ जहाँ जैसे जैसे हम लोग कोड लिखेंगे वैसे वैसे कोड एग्जीक्यूट होगा मेरे वाइल लूप में. जबकि फॉर लूप में बॉडी तो एग्जीक्यूट होगी जैसे हम लोग लिख रहे हैं, बट मेरा जो इंक्रीमेंटिंग कंडीशन है ना, वो ऑलवेज अप्लाइड एट एंड, वो हमेशा लास्ट में इंक्रीमेंट होगा. गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मैं अब सपोज करना मैं यस इसको सर एंड में लिख रहा हूँ, आंसर क्या आया? 10. कोई बता सकता है क्यों? कोई भी ट्राई करे. यस सर एक्स की वैल्यू बाद में इंक्रीमेंट हुई है. एक्स की वैल्यू बाद में इंक्रीमेंट हुई. नितिन कुछ कह रहे थे? सर पोस्ट इंक्रीमेंट सर वही कि एक्स में इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है, इस वजह से वो चेंज हो गई वैल्यू. मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट होने लगा ना प्री इंक्रीमेंट से. तो समझ में आ रही है चीज़ें कैसे वर्क कर रहा है? हाउ फॉर लूप इज वर्किंग, हाउ वाइल लूप इज वर्किंग, मेरी टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होती है, इंक्रीमेंटिंग कंडीशन क्या होती है, हाउ बॉडी इज एग्जीक्यूटेड. आई होप एवरीथिंग मेक सेंस. यस सर ओके, तो जस्ट एक लास्ट चीज़ बची है, दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट.
So let me tell you with examples only. तुम मतलब आप सब लोग सी प्लस प्लस करते हो या जो भी लैंग्वेज करते हो, उसमें कभी सुना है इफ एंड एल्स के बारे में? यस सर। जैसे मैं बताता हूँ, सपोज ये मेरा वाइल लूप है, वाइल x इज लेस देन 5, ओके, एंड व्हाट आई वांट, I have two sum 1 and sum 2. X is less than 10. Okay, and I want to get sum of first 5 number in sum 1 and sum of next 5 number in sum 2. Getting my point? मैं क्या चाहता हूँ, मैं पहले 5 नंबर का सम चाहता हूँ, 1 2 3 4 5 का सम आ जाए मेरे सम 1 में, और 6 7 8 9 10 का सम आ जाए मेरे सम 2 में। मैं ये चाहता हूँ। तो अब मैं फॉर लूप लिखूँगा, तो इंक्रीमेंट करा मैंने, वाइल लूप लिखूँगा, इंक्रीमेंट करा मैंने, एंड मैं क्या कर दूँगा, सम 1 प्लस सम 1 इज इक्वल टू सम 1 प्लस एक्स, एंड सम 2 इज इक्वल टू सम 2 प्लस एक्स, एंड println sum 1 sum 2. Okay, so can anybody predict answer कि आंसर क्या हो सकता है? 55 हुआ क्या एक्चुअली, मेरे 1 से लेके 10 तक का सम दोनों में ही आ गया। आप बोल रहे हो सर ये क्या, आपने तो बोला था कि फर्स्ट 5 नंबर का सम 1 में चाहिए, नेक्स्ट 5 नंबर का सम 2 में चाहिए। तो फॉर दिस टाइप ऑफ कंडीशंस व्हाट वी यूज इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। सो एक्चुअली मुझे पता है कि मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा, x इक्वल्स टू x+1 होगा फर्स्ट स्टेप, एंड देन बॉडी एग्जीक्यूट होगी, एंड जैसे जैसे बॉडी लिखी है वैसे वैसे एग्जीक्यूट होती जाएगी। बट मैंने कहा कि आई वॉन्ट दिस वन सम इज इक्वल टू सम 1 इज इक्वल टू सम 1 प्लस एक्स टू अकर ओनली व्हेन मेरा x 5 से छोटा हो या 5 के बराबर हो। मैंने यही तो बोला, पहले 5 नंबर का सम। तो जावा प्रोवाइड करता है एक इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड एल्स दिस। सम 2 मेरा क्या हो गया, 6 7 8 9 10 का सम, एंड सम विच इज 40, एंड मेरा सम 1 क्या हो गया 15। गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स एक्चुअली if and else statement, these all are statement which are used in loops or can be used outside too. means ये इसलिए काम आते हैं ताकि मैंने लूप लिख दिया, अब मेरा जावा तो एग्जीक्यूट पूरी बॉडी को करेगा, बट मैं नहीं चाहता कि सिर्फ और सिर्फ इस स्पेशल कंडीशन, मेरी कोई स्पेशल कंडीशन है अप टू विच मेरा एक बॉडी का पार्ट एग्जीक्यूट हो। मीन्स मैं पार्शियल एग्जीक्यूशन करा सकता हूँ। दिख रहा है ना कि मैं पूरी बॉडी, हर स्टेप में पूरी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करा रहा। जब मेरा x लेस देन 5 है तब मैं सम 1 में ऐड करवा रहा हूँ, एंड जब मेरा x ग्रेटर देन 5 है मैं इधर ऐड करा रहा हूँ। इज इट क्लियर? ये होता है वाइल लूप। मीन्स दीज आर इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, देन ये था मेरा इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एंड एल्स स्टेटमेंट फॉर लूप में भी यूज हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी वाइल लूप में यूज हो। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एंड इसको मैं हटा देता हूँ। दिस इज नोन एज कमेंटिंग आउट। एक्चुअली मैंने क्या करा, मैंने कमेंट आउट कर दिया, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जावा देखेगा ये कमेंट आउट है
तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और आगे बढ़ जाएगा। अब कोई प्रिडिक्ट कर सकता है मेरा आंसर क्या होगा? कोई भी? ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरा x इज ऑलवेज 0, i लिखना चाहिए था इधर, एंड सम प्लस i, सम प्लस i। 15 अब कोई प्रिडिक्ट कर सकता है आंसर क्या होगा? सर फर्स्ट में 15, सेकंड में? सेकंड में 9, अब गलती क्या कर दी पता है हम लोगों ने, मतलब आप लोगों से क्या मिस हो गया? इस केस में मेरा पोस्ट प्री इंक्रीमेंट हो रहा था, जबकि इस केस में तो मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, फॉर लूप है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर। तो सम 1 क्या होगा? 10, सम 2 क्या होगा? 35। आई होप एवरीथिंग इज नाउ क्लियर। इफ एन एल स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं, क्लियर है सबको? यस सर। आई मीन्स एंड इट इज नॉट दैट कि मेरे पास एक ही है। आई कैन यूज इफ आई इज ग्रेटर देन 5 टू लेस देन इक्वल्स टू, बता देता हूँ एक बार, लेस देन एंड इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। these are all the condition। एंड एक और चीज, सपोज we want to print I when I is equal to 5, so how can we do that? Getting my point? मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ I की वैल्यू जब मेरा I 5 है, तो फॉर दैट आई कैन डू I equals to 5। इसमें सिंगल इक्वल्स टू नहीं लिखता, I equals to 5। एंड मैं एक बार प्रिंट आउट करवा देता हूँ, println I, तो एक्चुअली प्रिंट होगा कि मेरा, गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है सबको कि क्या हो रहा है? ये एक और कंडीशन है इफ एल्स की, दैट इज इक्वल्स टू मीन्स जो लेफ्ट में लिखा है इक्वल्स टू के एंड जो राइट में लिखा है इट विल कंपेयर बोथ ऑफ देम एंड देन विल गिव माई आंसर। तो यस, यही था इफ एन else, means every possible conditional statement in everything। so किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कोई भी कुछ नहीं समझ में आया हो। नो वन, सब अज्यूम कर लेता हूँ सबको सब कुछ क्लियर है। एक चीज रह गई, आई वांट कि मैं जेडी के जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करवा देता, बट कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। ठीक है, आई होप आप लोग खुद से कर लें। अगर नहीं हुआ तो मुझे मैसेज कर देना, आई लेट यू नो हाउ टू इंस्टॉल इट। यस सर। कुछ बताना चाहते हैं कि कोई डाउट वाउट कुछ भी, या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, या कुछ लगा हो कि सर कैंपस में पूछना सर कि मतलब जावा में कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर बताइए, तो सर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वो अपन स्ट्रक्चर्स में, वो अपन क्लासेस में पढ़ेंगे। वो था ना, मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बता रहा था उसमें। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मेन है कि जब भी तुम अपने लोकल पीसी पे जावा में प्रोग्राम लिखते हो तो जावा फाइल सेव करते हो .java एक्सटेंशन से। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि पता होना चाहिए कि एक्सटेंशन जावा है, किसी को भी पता होना चाहिए कि मेरा प्रोग्राम जावा का है, तो मैं सेव करूँगा .java, एंड जो भी मेरी प्रोग्राम का नाम होता है ना, वही मेरी इनिशियल क्लास का नाम होता है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मैं एक मेरा VS कोड पे बता देता हूँ। अभी तक
चल रहा है क्या ये? ओके, नाउ अब हैव अ लुक कि मैं एक नया फाइल क्रिएट करके बता देता हूँ, शायद डाउट क्लियर हो जाए। नया फाइल लिया, नेम एंटाइटल्ड 1। सबसे पहले मैं इसको नेम करूँगा। ओके, मेरे डेस्कटॉप पर एक जावा नाम का फोल्डर है, मैंने उसको खोला एंड उसमें मैं इसको सेव कर देता हूँ। कोई भी नाम बता दो, कोई भी। कोई भी नाम, सिंपल प्रोग्राम। टेस्ट रन टेक्स्ट। रन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रन। एक्सटेंशन बताऊँ डॉट जावा। सो आई लेट माई विजुअल स्टूडियो कोड नो कि ये जावा का फाइल है। गेटिंग? सो क्रिएट करते ही हुआ क्या, मेरे विजुअल स्टूडियो कोड ने ऑटोमेटिकली एक क्लास बना दी। समझ रहे हो? यस सर। हटा देते हैं। अब अपन इस क्लास में कोड कर सकते हैं, बट टू कोड एनीथिंग वी ऑलवेज नीड अ मेन फंक्शन। अपन को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मेन लिखना है। जावा JDK एंड विजुअल कोड स्टूडियो विल डू दिस ऑटोमेटिकली फॉर यू। यस सर। Getting my point? यस सर। And then whatever you want, you can write system dot out dot print ln, like I'm printing hello, so this will print hello. Let me save this. इंपोर्ट हटा देना चाहिए। हेलो, देख लो हेलो आउटपुट आ रहा है। तो ऐसे क्रिएट करते हैं सैम्पल जावा फाइल। इसके लिए अपन, अगर आज मैं विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करवा के बता देता तो तुम लोगों को और क्लियर हो जाता, बट नो वन रिप्लाइड मी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आई ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी कैन डू, मैं मेरे लैपटॉप से आई इंस्टॉल अनइंस्टॉल विजुअल स्टूडियो एंड देन आई लेट एवरीवन नो। मैं बेसिक से करूँगा, एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा कि डाउनलोड क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करना है, देन सब कुछ बता दूंगा। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी चीज़ लगी हो कि सर ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी या कुछ भी, तो बता सकते हो। अदरवाइज यू कैन लीव। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम।